लिंक इनको नहीं मिला लिंक? ये जो बच्चे हमारे फ्यूचर वर्ल्ड के बच्चे, इनको क्यों नहीं मिला लिंक? ओके ओके ओके, एक मिनट। अच्छा आज एक मिनट, होल्ड जस्ट 1 मिनट एवरीवन। मैंने जो काम कहा है आप लोगों ने वो करना है सब, और फिर हम FWS के प्यारे बच्चे कहाँ हैं? प्लीज आ जाए सब लोग, सब लोग इधर ही करें स्टार्ट। Any question you want to ask in the start? Yes, no question. सर वो आप रिवाइज करा देंगे जो वो लॉन्ग क्वेश्चन वाला फॉर्मेट, जो मुझे भूल गया, बहुत दिनों से नहीं किया। दोबारा पूछिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी मुझे। सर वो लॉन्ग क्वेश्चन का फॉर्मेट रिवाइज करा देंगे। ठीक है, आज आज का टारगेट शायद मैंने आपको भेजा हुआ है सबको, फॉर्मेट ऑफ दिस एटीपी सेशन कि हम कैसे जाएंगे। आज इंशाल्लाह हम टारगेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, कल है क्वेश्चन नंबर 4, and then we have question 2 and 1. So this is how we go about this very ATP session. तो आज आपने question 3 को माइंड में रखना है। After this very class इंशाल्लाह आप सबका, किसी एक बच्चे का भी question 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। So I need your attention everyone. Before we start with the actual question, let's first discuss the background of this question number 3. What basic information do we need to memorize? किस चीज का हमें ख्याल रखना है if we want to score full marks in this very question? तो क्वेश्चन 3 को माइंड में रखें। नॉर्मली ये 6 to 8 मार्क्स का होता है, इसमें फुल मार्क्स आते हैं। इट्स अ फुल स्कोरिंग क्वेश्चन। सो आई एम श्योर आप सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात। सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन इसके लिए of cations and anions, and then we need to know identification of gases, since this question is about qualitative analysis. So first thing, we need to know the identification of cations and anions, and after identification of ions we must know how to identify the gases, and after we're done with the gases we must know how to do the flame test. चार चीजें। So let's quickly in first 5 or 7 minutes do the test for cations. जल्दी से इसकी रिवीजन करते हैं, and then we'll do the test for anions, for gases, and for जो भी हमारे पास बाद में है। ओके सो यार ये जो लेट वाले बच्चे हैं ना, ये बहुत तंग कर रहे हैं मुझे। प्लीज, आपको मैंने टाइम दिया हुआ था 9:15 का, तो टाइम पे आना है। अच्छा, जब भी हम किसी कैटाइन को टेस्ट करते हैं, the reagent to test a cation, what reagent is required? What reagent do we use to test the cation? We can use two reagents. We can either use sodium hydroxide aqueous, or we can use aqueous ammonia. Not ammonia but aqueous ammonia. Ammonia लिखोगे कुछ नहीं मिलेगा, because ammonia तो गैस होती है, right? So to test a cation we can use aqueous sodium hydroxide or aqueous ammonia. Now listen everyone, we have three cations, which is Zn2 plus, aluminum 3 plus, and calcium 2 plus. Whenever you have any unknown solution, you are given with any unknown solution, you're not sure what this solution contains, you just add few drops of sodium hydroxide into it. Few drops of sodium hydroxide. So if with few drops you get white PPT, few drops में क्या मिला आपको? Few drops में you get white PPT. With few drops of sodium hydroxide you get white precipitate. So if you get white precipitate with few drops, you either have zinc ions in the solution, or you have aluminum ions, or you have, इन तीनों के अलावा किसी के भी white precipitate नहीं है। बात समझ आ गई? जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया few drops and you get white precipitate, so immediately आपको क्लिक करना चाहिए कि either it contains zinc, aluminum, or calcium. Now after addition of few drops, you added the same sodium hydroxide in excess. थोड़ा ज्यादा ऐड कर दिया, ऑल्दो कि हम एक्चुअल प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करना हमने, लकीली और अनलकीली, लेकिन हमें नॉलेज तो होना चाहिए। सो व्हेन यू विल ऐड एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, these white precipitate will dissolve. If the white precipitate will dissolve,
if the white precipitate will dissolve and the solution turns colorless. So you have to tell the full thing to the examiner. The precipitate dissolved and it formed colorless solution. If it formed colorless solution, either it contains zinc ions or it contains aluminum ions. And if the precipitate remain insoluble, so it contains calcium ions. So this is how you can test zinc, aluminum, and calcium with sodium hydroxide. Now, we are still not sure whether it contains zinc or aluminum, because both give similar result, both with few drops and with excess of sodium hydroxide. Now let's use the other reagent. वो sometime आपको कहेगा कि यार आपने sodium hydroxide use किया and it shows similar result with white PPT and PPT dissolve. So how do we confirm whether it is zinc or aluminum? कैसे confirm करेंगे? You would use ammonia, few drops and excess. So again with few drops, you will get white PPT with both. With few drops, you will get white precipitate. अच्छा, दोनों में white precipitate आ गए. Zinc में excess में white PPT dissolve, colorless solution. PPT dissolve, colorless solution, और यहाँ पे PPT insoluble. आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आप ये क्यों करवा रहे हैं, ये तो given होगा. Although ये given होगा, but इसका prior knowledge is very important. Sometimes actual आपके सामने भी पता लिखा हुआ होता है, हमें समझ नहीं आ रही कि इसमें से actual answer कहाँ से ढूंढे. So we must have the prior knowledge, actual knowledge that how to use that given sheet, qualitative analysis. I'm sure आपको given होगी, and I know कि आपको use करना भी आता है. Okay, आगे चलें सब लोग. Now we have some colorful compounds. Let's say we have chromium, we have Fe2+. Both of them, they are the beautiful transition elements, and they both form green PPT with few drops. Both form green PPT with few drops. But those green PPT insoluble with iron and soluble if it contains chromium ions. Make sense, everyone? With few drops, both of them form green precipitate. If it contains chromium ion, when you add excess of sodium hydroxide, it dissolves. अगर वो dissolve होता है तो वो क्या है? It contains chromium ion. और अगर वो dissolve नहीं हो रहे तो फिर वो क्या है? Then that is, फिर वो क्या है? Okay. तो फिर इसका मतलब है कि वो Fe2+ है. Then let's use aqueous ammonia. Again, उसमें भी green PPT बनाएंगे दोनों लोग. And both are insoluble in excess. So they show similar result with this. We know if it contains Fe2 ions, तो Fe2 ions को बेटा, Fe2 ions को अगर आप थोड़ी देर के लिए, when you stand Fe2 ions, solution contain Fe2 ions, and you added few drops of sodium hydroxide, and it formed green PPT, and you leave the solution for few minutes. जिस तरह जो एप्पल होता है ना, एप्पल के अंदर आयरन होता है. एप्पल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो काट के, तो उसका कलर क्या हो जाएगा? It turns brown. तो बिल्कुल इसी तरह if it contain Fe2+, और एप्पल में भी Fe2+ ions ही होते हैं, आयरन होता है. So if you leave the solution for few minutes, it will turn brown near the surface. तो एप्पल अंदर से ब्राउन नहीं होगा, अंदर से वही व्हाइट ही रहेगा, लेकिन उसकी जो सरफेस होगी, जो आपने उसका जो कवर है रिमूव कर दोगे, तो it will turn brown. But if it has Fe3 ions, instead of green PPT, you will get क्या प्रेसिपिटेट आते हैं Fe3 ions के? रेड PPT, कुछ इस तरह के PPT आते हैं, ऑरेंज रेड PPT आते हैं शायद, and insoluble in excess, and again the same color precipitate and insoluble. अच्छा, एक सबसे my favorite, copper. तो कॉपर का कलर किसको याद है? What type of color precipitate copper ions किसके बनाता है? जल्दी से बताएं जरा. Copper forms blue precipitate. Copper form blue precipitate, and blue precipitate with few drops, and those blue precipitate are insoluble in excess of sodium hydroxide. But the same copper ions with aqueous ammonia again form blue PPT,
and those precipitate dissolve, form deep blue. यहां पे dissolve होके क्या कलर बनाएंगे? Deep blue solution. Last in the cations list, that is ammonium ions. अच्छा, अमोनियम और नाइट्रेट का बड़ा मजेदार टेस्ट. नाइट्रेट इज एन एनाइन, लेकिन इन दोनों में अच्छी चीज ये है, द कॉमन थिंग इन बोथ ऑफ दीज कैटाइन एंड एनाइन, they both releases the same gas, that is ammonia gas, but the gas is produced when you reacted them with the different under different conditions. Now let's look at the important question. I want everyone to listen. Let's say you have a solution, and that solution contains ammonium ions, and the same solution contains nitrate ions. Okay, तो पहले मैं जरा इसके टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में मैं इस एक्चुअली एग्जांपल. So how do we test ammonium? By the way, ammonium is NH4 plus. You can't use ammonia, test ammonium. You just need sodium hydroxide, add NaOH 1 centimeter और उसको warm करें. Warm, heat नहीं करना, warm करना है, and test the gas produced. Ammonia gas is produced. What is the test for ammonia gas? It turns damp red litmus paper blue. Damp red litmus turns blue, right? So this is how you test the ammonia gas. Okay, so if the solution contain ammonium ions, you just add few drops of sodium hydroxide and you warm the solution a little, and you test for any gas produced with the damp litmus paper, and if the litmus paper turns blue, the gas produced is nothing but ammonia gas, and if ammonia gas is produced, the solution contain ammonium ions. Make sense? Okay. Now let's say our solution, let's discuss the test for nitrate ions now. For nitrate ions, you add the same NaOH, but once you add the NaOH and you warm, and ammonia gas is produced. अगर NaOH और warm करने से ammonia produce होती है, तो that confirm ammonium ions. But NaOH के साथ if the solution needs aluminum foil, हमें क्या add करना है? When you are testing for nitrate ion, it is mandatory, it is essential to add aluminum foil and then warm. And then if the gas is produced, ammonia gas is produced, and you test for the gas, and the gas is, turned damp red litmus paper blue. So the solution contain nitrate ion. बस 5-10 मिनट, उसके बाद हम वापस actual questions पे जा रहे हैं. Okay. Now imagine you are given with a solution. ये बहुत technical question है. एक बार आया हुआ, सारे बच्चे फंस गए थे. सब लोग सुने जरा. A solution contain both nitrate ions and ammonium ions. अच्छा, I want to test the solution. मैंने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया few drops, और मैंने इसमें एल्यूमिनियम फॉयल ऐड कर दी, और मैंने इसको वार्म भी कर दिया. ठीक है. And I tested for any gas produced. यहाँ से bubbles of gas निकले, and the gas was ammonia gas, क्योंकि वो damp litmus paper, उसने क्या कर दिया? That litmus paper turns blue. Now मुझे बताएं, हमने किस आयन को कंफर्म किया? What do the result of the test tells us? Whether the solution contain ammonium ions or the solution contain nitrate ions. Think before you speak, everyone. Mic is open. I want everyone to check. दोबारा सुने. A solution contain both nitrate and ammonium ions. चलो, unknown solution है, मैंने बताया नहीं आपको क्या है. हमने उसमें ऐड कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम फॉयल, और उसको हमने वार्म किया, एंड अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस्ड. तो हम क्या रिजल्ट लिखेंगे? व्हाट रिजल्ट शुड आई राइट? व्हिच आयन डज द सॉल्यूशन कंटेन्स? 10 seconds everyone. शाबाश. 10 seconds. Yes, Ahmed Kashif, you want to respond? Sir, ammonium ions. Ammonium ions. Why not nitrate ions? क्योंकि नाइट्रेट के लिए एल्यूमिनियम ऐड करते हैं, इसमें एल्यूमिनियम ऐड की भी मैंने. सर, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं दिया. एल्यूमिनियम फॉयल ऐड की है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया है हमने. ऊपर क्या नाइट्रेट का क्या टेस्ट पड़ा?
हमने नाइट्रेट का टेस्ट पढ़ा है कि you add NaOH aqueous, you add aluminum foil and you warm. If the ammonia gas is produced, then the solution contain nitrate ions. तो सर वार्म किया इसका मतलब है डिसॉल्व नहीं हुआ, एक्सेस में है? नो, नॉट एट ऑल. देखो जब भी आप इसमें, अब हमें इसमें ये चीज तो हमें कंफर्म हो गई, इसमें हमें कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ. इसमें हमें कंफ्यूजन है कि अगर वो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम और वार्म करने से जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो किस वजह से प्रोड्यूस हुई है. वी आर नॉट श्योर कि वेदर वो अमोनियम से प्रोड्यूस हुई है, क्योंकि अमोनियम में सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड और वार्म चाहिए, और वी आर नॉट श्योर कि वो नाइट्रेट से हुई है, क्योंकि नाइट्रेट में एल्यूमिनियम फॉयल भी चाहिए. हमने तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी पहली अटेम्प्ट में ऐड कर दिया, एल्यूमिनियम फॉयल भी ऐड कर दी, वार्म भी कर दिया. तो जब आपके पास सोल्यूशन में दोनों आयंस हो तो आपने स्टेप वाइज टेस्ट करना. इन द फर्स्ट अटेम्प्ट यू वुड नॉट ऐड एल्यूमिनियम फॉयल, you will just add sodium hydroxide and you will warm. If you will just add sodium hydroxide and warm and no gas is produced, तो इसका क्या मतलब है? What does this mean? क्या मतलब है इसका? Yes. सर क्या अमोनियम You add sodium hydroxide and you warm, no gas is produced. इसका क्या मतलब है? Ammonium ions are absent. इसका यही मतलब है. अगर यहां से अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती तो अमोनियम आयंस होते. अगर उसमें अमोनिया गैस प्रोड्यूस नहीं हुई आफ्टर एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वार्म, दैट मीन इट डजंट कंटेन एनी अमोनियम. शाबाश शायद. बट नाउ यू एडेड एल्यूमिनियम फॉयल. अब आपने एल्यूमिनियम फॉयल ऐड कर दी, फिर वार्म किया. इफ अपॉन एडिंग एल्यूमिनियम फॉयल वो जो हम अपने किचन में यूज करते हैं, इफ अपॉन एडिशन ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल एंड देन वार्म एंड देन अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस, तो फिर इसका मतलब इसके अंदर क्या है? इट कंटेन नाइट्रेट आयंस. बट अगर सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी अमोनिया प्रोड्यूस हो रही थी, एल्यूमिनियम फॉयल ऐड करने के बाद भी प्रोड्यूस हुई, इसका मतलब इट कंटेन बोथ आयंस. बट यू डायरेक्टली कैन नॉट ऐड एल्यूमिनियम इन फर्स्ट अटेम्प्ट. पहले इसको सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड से टेस्ट करो, चेक करो अगर अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रही है, और यस बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे. सबको समझ आ गई बात? उसके बाद जो सबसे कॉमन व्हाइट प्रेसिपिटेट आते हैं हमारे सिलेबस में, उसका नाम है हेलाइड आयन. Halide ions में बेटा we have chloride ion, we have bromide ion and we have iodide ion. These are the halide ions that may be present in any unknown solution. So what reagent do we use for these halide ions? What reagent? देखो इसमें we add first we add dilute nitric acid, and then the reagent is called silver nitrate aqueous. This is once we've added dilute nitric acid, in the second attempt we add silver nitrate aqueous. वो आपसे पूछेगा why there is a reason to add nitric acid, why we added nitric acid. क्यों ऐड की भाई हमने nitric acid? 10 रुपए दूंगा जिसने सही बताया. नो उधार, नकद इनाम. why there is a need to add nitric acid? Come on. सर क्यों ऐड किया? halides can displace the nitrate. छोड़ूंगा नहीं मैं आप लोगों को. शाबाश लाइबा बेटा. You look, if the solution contain any carbonate ion, और आप उसमें ऐड कर दो सीधा सिल्वर नाइट्रेट एक्वस. अब सोल्यूशन के अंदर क्लोराइड भी है, सोल्यूशन के अंदर कार्बोनेट भी है. कार्बोनेट तो सारे इंसॉल्युबल होते हैं. सब हमें क्या पता चलेगा आपको जो प्रेसिपिटेट आए हैं सिल्वर क्लोराइड के आए या सिल्वर कार्बोनेट के आए? तो we need to make sure that the solution does not contain any carbonate ion. So you add, जब भी आपने किसी चीज को भी टेस्ट करना है, irrespective of anything, एनाइंस को जब भी टेस्ट कर रहे हो, you always add acid. कोई भी एसिड ऐड कर दो. एसिड क्या करेगा? एसिड will react with the carbonate ions to produce carbon dioxide. So if the solution contain any carbonate ion, the acid will react with it to produce fizzing bubbles of gas. Now make sure कि carbonate नहीं है, then add silver nitrate aqueous. If the solution form PPT, white PPT तो क्लोराइड है, क्रीम PPT तो ब्रोमाइड है, येलो PPT तो आयोडाइड है. समझ आई क्यों ऐड करते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड? टू रिमूव द कार्बोनेट आयंस, टू रिमूव द एक्सेस कार्बोनेट आयंस. That's it. Okay, so if the solution contain chloride ion, to get white PPT, वो किस चीज के white PPT है भाई? किस चीज के white PPT है? सिल्वर क्लोराइड के हैं, क्लोराइड के नहीं है. तो white PPT is of silver chloride. एग्जामिनर आपसे इसकी आयनिक इक्वेशन पूछ सकता है, ऑल्दो बहुत कम चांसेस होते हैं पेपर एटीपी में, बट स्टिल ये क्वेश्चन है कि
आप ये जो प्रेसिपिटेट बने, प्लीज गिव द आयोनिक इक्वेशन। तो लिसन एवरीवन, जिसकी भी आयोनिक इक्वेशन लिखनी है उसको आपने यूं लिखा, प्रोडक्ट साइड पे लिख लिया सबने? यस यार, कौन तंग कर रहा है? प्लीज ना तंग कर। एक ऑलराइट, सो देखो हमने वी आर राइटिंग द आयोनिक इक्वेशन। आयोनिक इक्वेशन में यू राइट द प्रोडक्ट, जिसके प्रेसिपिटेट बने, राइट इट ऑन द प्रोडक्ट साइड विद द सॉलिड स्टेट सिंबल, एंड ऑन द रिएक्टेंट साइड इसी के आयंस लिख दो, बस लिख दिए आयंस। सिल्वर इज प्लस, क्लोराइड इज नेगेटिव। तो आयंस आर ऑलवेज एक्वस, ions are always aqueous with a plus state symbol. So this is how you can write the ion. कोई भी आएगा ऐसे ही लिखना है, just write the product with a solid state symbol and write the reactant with aqueous state symbol and whatever the charge. So if it contain white PPT, you know it is silver chloride, presence of chloride ion. If you see any cream PPT, so it confirms the presence of bromide ion, and the precipitate are of silver bromide. And if you see any yellow PPT, it is confirmed the presence of iodide ion, and the PPT are of silver iodide. जल्दी से आ जाए नीचे। नाइट्रेट का पढ़ लिया हमने, सल्फेट सबसे ज्यादा आता है, और सल्फाइट। यार सल्फेट के लिए भी हम निट्रिक एसिड तो मैंने ऐड करना ही करना है ना। डाइल्यूट निट्रिक एसिड इज अ मस्ट थिंग टू ऐड टू रिमूव एनी प्योर कार्बोनेट आयन। एंड फॉर सल्फेट आयन यू ऐड बेरियम नाइट्रेट एक्वस। क्या ऐड करेंगे? So if no change, अगर कोई चेंज नहीं आता, if there is no change, तो इसका क्या मतलब है? No change का मतलब ये है कि sulfate ions are not present, sulfate ions are absent, just like you people were in your ATP chemistry classes when teacher were like shouting at you people कि पढ़ लो, ATP important paper है। हम लोग नहीं पढ़ते थे, हम लोग मजे करते थे, कोई बात नहीं यार, ये तो easy paper है। इजी है इंशाल्लाह, ये 6 दिन पढ़ लोगे तो मैं बता रहा हूँ आपको सारा पेपर आता होगा। सो इफ अपॉन एडिशन ऑफ डाइल्यूट निट्रिक एसिड फॉलोड बाय बेरियम नाइट्रेट, अगर कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब है सल्फेट आयंस आर नॉट प्रेजेंट। एंड इफ यू सी व्हाइट पीपीटी, इसका मतलब ये है कि व्हाइट पीपीटी आए किस चीज के? व्हाइट पीपीटी आए बेरियम सल्फेट के। इसका मतलब सल्फेट आयंस आर प्रेजेंट। तो इसकी आयनिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे? प्लीज सब लोग इधर देखें। बेरियम सल्फेट लिख लिया हमने, इसी की आयंस लिख लो रिएक्टेंट साइड पे। बेरियम लिख लो, बेरियम +2 होता है एक्वस, और सल्फेट लिख लो, ये -2 होता है। आयनिक इक्वेशन आ गई। मेक सेंस एवरीवन? यस। सल्फाइड के लिए क्या टेस्ट करेंगे? इसमें सिर्फ ऐड एसिडिफाइड KMnO4। तो इफ KMnO4 पर्पल से क्या हो गया? पर्पल टू कलरलेस। So solution contains sulfite ions. इसका नाम क्या है? Sulfite. And this is sulfate. Make sense everyone? Yes. How to test the carbonate ions? 10 रुपए दूंगा अहमद जिसने सही बता दिया, तो बहुत आसान है। $10 बांट रहा हूँ। How to test the carbonate ions? ये तो अभी 10 बार बता दिया मैंने। Well done Umayma। भाई कार्बोनेट के लिए तो हम हर किसी में टेस्ट कर रहे हैं। Just simply add nitric acid or test the gas with lime water. Test the gas with lime water. Lime water होता है calcium hydroxide. Lime water. So if the lime water turns milky, the gas is carbon dioxide gas. And if the gas is carbon dioxide gas, the solution contains carbonate ions. Make sense everyone? Right? अच्छा, चलो जल्दी से questions पे आ जाते हैं। Question number 1. Ready everyone? Question number 1. Ready everyone? Okay. Yes, sir. मेरा सिंगिंग में अच्छा वैसे करियर हो सकता था, लेकिन बस बच्चों ने कभी मोटिवेट नहीं किया। अहमद मेरी सिंगिंग स्किल्स अच्छी हैं ही नहीं। जी सर, आप तो कोई अगले माइकल जैक्सन बन सकते थे। दाग आप ऑफ कर ले। दाग मेरे डांसिंग स्किल नहीं, मेरे सिंगिंग स्किल्स बताई हैं। ठीक है, मतलब बदला ले रहे हो तुम, चलो कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह कोई बात नहीं। दोनों में जानता हूँ आपको सर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1 एवरीवन। अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द, क्योंकि ये हर पेपर का क्वेश्चन 3 होता है, माइंड इट। ये जो हम आज का क्लास कर रहे हैं, दिस इज क्वेश्चन 3 ऑफ एवरी पेपर। एटीपी तो मोस्ट प्रेडिक्टेड पेपर है भाई। दिस इज द मोस्ट प्रेडिक्टेड पेपर एवर। एटीपी पेपर सबसे आसान होता है। सो कैसे करेंगे?
A student investigates solution W and copper 2. अब solution W में है क्या? कितना खूबसूरत, अब तो हमें आता है ना यार. A solution contain copper ions. तो copper ions का टेस्ट जल्दी से इमेजिन कर लो. With sodium hydroxide from blue PPT, insoluble in excess. With aqueous ammonia again from blue PPT, deep blue solution in excess. Carbonate ions कैसे टेस्ट करेंगे? Just add nitric acid. Test for the gas using delivery tube. Pass the gas through lime water, and lime water will literally turns milky. Okay. Okay. Hurry up. The test the student does in W shown in 3.1. Some of the observations are also shown. Add aqueous solution. Aqueous sodium hydroxide. देखो W में है क्या? W contain copper ions and carbonate ions. अब सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ पंगा करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन ओनली रिएक्ट विद कॉपर आयंस के साथ ही पंगा करेगा ना, बिकॉज़ वी नो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर कैटायंस. सॉल्यूशन रिमेन कलरलेस. उसने कह दिया कि कलरलेस सॉल्यूशन है कॉपर आयंस. ठीक है. फिर उसने कहा कि ऐड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड देन ऐड बेरियम नाइट्रेट. तो देखो हमने उसमें निट्रिक एसिड ऐड किया. वी एडेड निट्रिक एसिड HNO3. अच्छा, एक बात आप याद रखने कि सीक्वेंस से हम टेस्ट कर रहे हैं इसमें. ये आपके पास बेटा कॉपर कार्बोनेट है, सॉल्यूशन है. इसका मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन में यू हैव कॉपर आयंस एंड यू हैव कार्बोनेट आयंस, एंड इन दिस सॉल्यूशन यू हैव एडेड सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस. होना इसको हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंगली ब्लू चाहिए था, लेकिन उसने कहा कलरलेस. चले हम उसकी बात मान लेते हैं. इसका मतलब सॉल्यूशन में हमारे पास सोडियम आयंस भी आ गए एंड वी हैव हाइड्रोक्साइड आयन टू द. अभी सॉल्यूशन में हमारे पास 4 आयंस हो गए. ये बात आपको समझ आनी चाहिए. अब उसी सॉल्यूशन में वी एडेड निट्रिक एसिड. वी आर एडिंग हाइड्रोजन आयंस एंड नाइट्रेट आयंस बिकॉज़ निट्रिक एसिड इज HNO3. और फिर उसी सॉल्यूशन में वी आर एडिंग बेरियम आयंस एंड वी आर एडिंग नाइट्रेट आयंस. उसने कहा बेरियम नाइट्रेट. ठीक है. अब मुझे ये बताओ जरा गौर से, अब ये एक ही सॉल्यूशन के अंदर सब कुछ ऐड कर रहे हैं, एक ही सॉल्यूशन के अंदर सब कुछ ऐड कर रहे हैं. पता नहीं मैंने शायद वो तो नहीं कर दिया. W has shown some observation. My bad. W and copper 2 carbonates. Test for W. Okay, ठीक है. So ये तो नहीं है ना. फिर उसके अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, फिर नाइट्रिक एसिड ऐड किया और फिर बेरियम नाइट्रेट ऐड किया. ओके, सो नाउ वी एडेड बेरियम नाइट्रेट. ठीक है ठीक है, माय बैड, मैंने उसको एक ही चीज. ओके ठीक है. इट इज दिस कॉपर कार्बोनेट इज अ सेपरेट थिंग. मैंने उसको पंगा करके इसको दोबारा से. स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट सॉल्यूशन W. किसी एक ने पॉइंट आउट किया, बाकी ने नहीं किया, क्योंकि मैं तो इतने सुबह से क्लासेस पढ़ा रहा हूँ. मेरी बैटरी थोड़ी डाउन नहीं है वैसे, लेकिन पता नहीं इसमें मैंने एंड को इग्नोर कर दिया. सो सॉल्यूशन W इज अ डिफरेंट थिंग एंड सॉल्यूशन copper 2 carbonate is a different thing. So we have an unknown solution again, everyone. This is an unknown solution which is W. You added sodium hydroxide and it remains colorless. इसका मतलब ये है कि it doesn't have any, कोई white PPT नहीं बने, कोई blue PPT नहीं बने, कोई green नहीं बने. So इसमें कोई वो कैटायन नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं. फिर इसमें हमने nitric acid ऐड किया followed by barium nitrate. So when you add nitric acid followed by barium nitrate and it give white PPT, अगर उसमें कुछ ना आता तो फिर हम कहते हैं sulfate absent. And if upon addition of this thing, nitric acid, barium nitrate, and you get white PPT, तो क्या मिला है आपको? The solution contain what ions? The solution contains sulfate ions. Sulfate ions है ना उसमें. So हम लिख लेते हैं जी जल्दी से वहां जाके कि इसके अंदर क्या है. It contains sulfate ion. So W white PPT है बेरियम सल्फेट के. बेरियम तो हम खुद ऐड कर रहे हैं ना, तो सॉल्यूशन के अंदर सल्फेट आयन. Add hydrochloric acid and then add silver nitrate. तो हम किसका टेस्ट कर रहे हैं? Now we are testing for halide ion. So silver nitrate, हम सिल्वर डाला है और white PPT आए हैं. तो white PPT है सिल्वर क्लोराइड के and the solution contain chloride ions. Okay. लेकिन अगर आप गौर से देखें, ठीक है, फ्लेम टेस्ट किया W पे तो no color is observed. The student correctly conclude that ammonia gas is formed in test 1. Okay.
अच्छा, यहाँ पे सोल्यूशन कलरलेस बना है, लेकिन उसने कहा अमोनिया गैस बन रही है। तो मुझे बताओ किसके साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले और अमोनिया गैस निकले थोड़ा सा वार्म करने से, तो क्या प्रेजेंट हो सकता है? इट कंटेन अमोनियम आयंस। सोल्यूशन कंटेन अमोनियम आयंस सिंस उसने क्वेश्चन में बता दिया इट प्रोड्यूसेस अमोनिया, and it also contains sulfate ion and chloride ions. Describe what else student must have to reach to this conclusion. So if the ammonia gas has to be produced after addition of sodium hydroxide, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमें क्या चीज करनी चाहिए कि वहां से अमोनिया गैस निकल आए? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सुने सब लोग, ये आपके पास एक अननोन सॉल्यूशन था और उसमें आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, यू एडेड NaOH, और सॉल्यूशन कलरलेस रहा। लेकिन उसने आगे क्वेश्चन में कहा कि यहां से एक्चुअल में अमोनिया गैस निकल रही है। तो व्हाट थिंग शुड बी डन? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करना चाहिए और कि यहां से अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो? तो क्या करना चाहिए, जल्दी बताएं जरा सब लोग। अभी मैंने बताया बाय द वे, आप भाई आपने इसको हीट करना है, यू हैव टू वार्म। तो वो उसने नहीं यहाँ किया हुआ, उसने टेस्ट 1 में देखो सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू W, नो वार्म। अगर वो वार्म करता तो यहीं पे गैस निकल आती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे उसने कह दिया कि गैस निकली है, डिस्क्राइब व्हाट एल्स स्टूडेंट मस्ट हैव टू डन टू रीच दिस कंक्लूजन। सो 3 मार्क्स है। कैसे लेंगे 3 मार्क्स? सुने सब लोग। सो ऐड अमोनिया, आई मीन इसको वार्म द सॉल्यूशन, warm the solution will get 1 mark। भाई वार्म द सॉल्यूशन तो किया, अब अमोनिया को हमें कैसे ख्वाब आएगी कि वो जो गैस निकली है वो एक्चुअल अमोनिया है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। सो अदर 2 मार्क्स आर फॉर द confirmatory test of ammonia gas. Now test the gas with damp gas produced with a damp red litmus paper. So 1 mark is for the test, correct आपने टेस्ट परफॉर्म किया, damp red litmus paper. And 3rd mark is the paper will turn blue because we have to reach to this conclusion that it contains ammonia gas. If it contains ammonia gas, the paper must turn blue. Paper को तो blue होना ही है ना, so the paper turns blue, everyone. Make sense? Yes. समझ आ रही है ना भाई बात? ये 3 मार्क्स कैसे गेन किए हमने? तो यहाँ पे अगर हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते ये, तो हम तो बस वॉर्म ही करते यार, 3 मार्क्स कैसे लेने थे? तो मेक श्योर, देखो इजी पेपर में वो स्कैम करने की कोशिश करेगा आपके साथ, इजी क्वेश्चन में ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन दे देगा। हमें समझ नहीं आएगी हाउ टू गेट 3 मार्क्स। अगर बहुत मुश्किल क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का होता है तो हाउ टू उसका 1 नंबर ही देगा। सो whether the mark is 1 or 3, just try to give whatever is fully required. So आपने प्लीज मेक श्योर करना है कि पूरी चीज उसको आप आंसर में लिख दें। State why the student cannot identify the anion in W from the observation in test 3. टेस्ट 3 में कर क्या रहे हैं? टेस्ट 3 में हम ऐड कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जरा 5 सेकंड, चलो 10 सेकंड दिए मैंने आप। देखो मैंने आपको कहा कि whenever you add सिल्वर नाइट्रेट, बहुत ज्यादा हमारी स्क्रीन मैसी हो गई है बट वैसे आप लोग सुनते भी नहीं है ना बात। सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने से जब भी व्हाइट पीपीटी आए, सॉल्यूशन कंटेन क्लोराइड आयन, लेकिन वो तो कह रहा है कि आप यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द एनाइन। तो मैं आपको दोबारा से स्क्रीन दिखाता हूं और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि टेस्ट 3 को जरा एक बार फिर से पढ़े। मैं टेस्ट 3 को जरा रिमूव कर देता हूँ सब कुछ जो मैंने लिखा हुआ। टेस्ट 3 को से हाउ वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द एनाइन even though it giving the positive result, the white precipitate. सब लोग भाई व्हाइट पीपीटी आए तो क्लोराइड होना चाहिए ना, यस और नो? कर दो यस नो यार। अहमद भाई, गाने आओ भाई, खुदा का खौफ कर लो। अगर आप देखो इट कंटेन, इट गिव व्हाइट पीपीटी एंड व्हाइट पीपीटी डेफिनेटली सिल्वर क्लोराइड के ही है, नो डाउट अबाउट इट। बट हम तो निट्रिक एसिड से इसको एसिडिफाई करते थे, यहां से किस चीज से कर रहे हैं? लुक एट द एसिड दैट वी आर यूजिंग। हम तो खुद उसको क्लोराइड आयन बाहर से दे रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग क्लोराइड आयन, वी आर एडिंग HCl।
तो हम खुद ही HCl ऐड कर रहे हैं, खुद ही सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर रहे हैं, तो व्हाइट पीपीडी तो इसी क्लोराइड के होंगे ना। अब हो सकता है सोल्यूशन में भी क्लोराइड हो, बट ये तो कैसे पता चलेगा, बिकॉज वी आर ऑल्सो एडिंग क्लोराइड आइंस। सो हम क्या लिखेंगे, एज द HCl will provide the chloride ions which can or may form, which forms white PPD of AgCl. So it's difficult to distinguish whether it is because of the actual chloride which was initially present, or it is because of any new जो हमने, because हमने तो भाई से भी ऐड किया हुआ है ना, come on. Okay. State how the test and observation shows that it doesn't contain any sodium ions. तो सोडियम आयंस का टेस्ट तो मैंने बताया नहीं, हम कैसे वैसे सोडियम को टेस्ट करते हैं. How do we test the sodium ion? Flame test. सबसे ब्यूटीफुल कलर इन द फ्लेम. फ्लेम टेस्ट इसका किया हमने. उसने कहा टेस्ट 5 को 4 को जरा गौर से देखें सब लोग. फ्लेम में उसने कहा नो कलर. तो अगर ये सोडियम होता तो ये क्या देता, अगर ये सोडियम होता तो ये प्रोवाइड करता येलो फ्लेम, बट इट डजंट फॉर्म एनी फ्लेम. सो एज उसने लिखा हुआ है इट डज नॉट कंटेन सोडियम आयन. तो हमने बताना है अगर सोडियम होता तो येलो फ्लेम होता. इफ नो फ्लेम, क्या है फ्लेम, flame doesn't give any yellow. Flame color wasn't yellow. In the presence of sodium, the flame should be yellow. The color was not yellow. Identify the cation and anion. The cation तो हम identify कर चुके हैं. What cation does it contain? It contains ammonium ions and it contained sulfate ions. देखो white PPT ion, sulfate ions is the one that we have. अमोनियम पे मुझे डाउट है, दोबारा देख. Aqueous sodium hydroxide is added, so solution remains colorless. Student correctly conclude that ammonia gas is produced. हाँ जी अमोनियम ही है, अमोनियम. भाई ये बात सबको हजम हो गई. All 3 to 5 and 2 7 marks. Everyone, yes. Okay. The student add hydrochloric acid. Let's talk about copper 2 carbonate. Now you have a beaker, and in the beaker you have copper ions, you have carbonate ions, and what you are adding? You are adding HCl, man. So जब इसमें acid add करोगे तो you will see bubbles. ऐसे, whenever you react any acid with any metal carbonate, so you will get the salt, the bubbles of colorless gas which turns lime water milky, and a colorless liquid which turns anhydrous white copper 2 chloride blue, and which turns blue cobalt chloride pink. I'm sure आपको water का test भी याद है क्योंकि वो पूछ सकता है यहाँ पे भी water का test. Practical का paper है तो testing of water is a practical thing, you know. State the observation that confirms the production of gas. The bubbles fizzing, effervescence, colorless, bubbles of colorless gas. Describe how to do a flame test. A very important 3-mark question. How to carry, देखो flame test हम 2 लोगों का कर सकते हैं, सब लोग गौर से. We can do flame test of a solution or a solid thing. So how to do the flame test of a solution? Listen everyone. You have something solution in a beaker, and you should also have what do we call a burner, a Bunsen burner maybe. Now you take a clean nichrome wire. Platinum भी ले सकते हो, but nichrome is recommended. You take a clean nichrome wire, dip that wire, one end of the wire in the solution, dip किया उसको, and then put this wire in the hot blue flame. या आपने hot blue flame लिखना है, and observe the color. 3 marks कैसे लेने हैं? एक ये solution का कर रहे हैं, अभी हम उसका solid का भी करेंगे. A clean, yes, it's a transition method.
clean nichrome wire. Dip the wire in the solution. One end of the wire, right? And place the same end in the hot blue flame. Of Bunsen burner. और थर्ड चीज नहीं भूलनी है आपने, एंड ऑब्जर्व द कलर. क्योंकि कलर ऑब्जर्व करेंगे तो यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सी मेटल है. एंड ऑब्जर्व द कलर. तो ये पेपर में आना है जी. सबको हजम हो गई बात. हाउ टू गेन फुल मार्क्स एंड हाउ टू कैरी आउट द फ्लेम टेस्ट फॉर सोल्यूशन. टेक अ क्लीन नाइक्रोम वायर, डिप वन एंड ऑफ द वायर, एक डिप कर दो उसको निकालो और एक हॉट बंसन बर्नर के ब्लू फ्लेम में देखो, फिर उसका फ्लेम कलर ऑब्जर्व करो. What if we are given with a solid thing? आपको कुछ भी solid चीज given है, उसका तो बहुत ही आसान है. Solid powder है. So again take a clean nichrome wire and make loop on one end. Loop का मतलब होता है थोड़ा सा spoon type. उसका loop बनाओ, एक end पे loop बनाओ, and then put some of the metal या powder on that loop. उस पे रखा हमने. इमेजिन कि हमने इस लूप पे रख लिया, ये थोड़ी सी मेटल डाल दी. अब इसको आपने इसको ले जाएं हॉट ब्लू फ्लेम में, बिल्कुल वैसे जैसे उसको लेके गए. नो कैरी दिस होल थिंग इन द हॉट ब्लू फ्लेम एंड ऑब्जर्व द कलर ऑफ द फ्लेम. मेक सेंस एवरीवन? सॉलिड पे कैसे करना है? टेक अ क्लीन नाइक्रोम वायर, मेक अ लूप ऑन वन एंड. लूप बनाया आपने, पुट सम मैस ऑफ द मेटल और जो भी पाउडर है, फिर आप उसको ले गए इन द हॉट ब्लू फ्लेम, ऑब्जर्व द कलर. अच्छा, one way of describe one another method the student could use to confirm that the solution contains copper 2 ions. पहले उसने क्या किया? तो पहले तो फ्लेम टेस्ट कर रहा है ना, कॉपर का एक वो भी तो टेस्ट है ना, ये भी 3 मार्क्स का है. तो हाउ टू गेट द 3 मार्क्स? सो पहला आपने लिखना है रीजेंट के मार्क्स मिलेंगे आप. So we can use any reagent, I mean aqueous ammonia, sodium hydroxide. So use NaOH aqueous. First add few drops. देखो ये full scoring question है, ये full scoring question. First add few drops and then add an excess. With few drops, the blue PPT will form. PPT is acceptable, by the way. Will form. आप precipitate लिख देंगे तो अच्छी बात है. And precipitate insoluble. And these precipitates are insoluble, remain insoluble in excess. So 1 mark is for correct reagent, 1 is for correct test with few drops, and 1 for correct test for the excess. Make sense, everyone? Yes, सबको समझ आ रही है बात? थक तो नहीं गए आप लोग? I'm sure आप भी मेरी तरह फुल एनर्जेटिक है जैसे मैं. ऑल्दो मेरी क्लासेस सुबह से मैं इसी चेयर पे बैठा हूँ. मैं जब से उठा हूँ इसी चेयर पे बैठा हूँ. लोग जंग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, तुम लोग मीम्स कर रहे हैं, बना रहे हो. ये ग्रुप में क्लास में तुम लोगों को मैं देख रहा हूँ सबको. अब मैं करता हूँ जरा ऑल एडमिन कर देता हूँ कल से. जितना तुम लोग तंग कर रहे हो ना मुझे ग्रुप में, सबसे ज्यादा हशाम, उससे ज्यादा अक्सा, उससे ज्यादा 3-4 बड़े मेजर प्लेयर हैं माशाल्लाह जो बहुत एक्टिव है, जिनको व्हाट्सएप के अलावा कोई काम नहीं है. आज वर्कशीट दूंगा ना, कल तुम लोगों ने कंप्लीट ना की तो फिर मैं भी आ जाऊंगा ग्रुप चैट में इंशाल्लाह. आई विल बी योर पार्टनर इन द ग्रुप चैट. अक्सा मैम, सर हशाम. ओके, सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 एवरीवन. अच्छा, ये आप लोग करेंगे. टेक फ्यू मिनट्स, 4 मिनट्स लिए आपको टू सॉल्व दिस व्हाटएवर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन राइट. सब लोग शाबाश एवरीवन. सर वो टेस्ट्स की लिस्ट दिखा दें फिर. वो आप लोग कोई भी पेपर डाउनलोड कर लो, कोई भी ईयरली पेपर डाउनलोड कर लो, उसमें पड़ी होगी.
2 minutes. One minute. Hasham bhai, you there? Daud bhai? देख रहा हूं मैं तुम लोग. All right, time is up. A student investigates solution W and solid X. Let's look at solution W. A green color contains iron 2 ions. Describe how the solution contains, how W can shown to contain iron 2 ions. So how do we prove that it contains Fe2 ions? कैसे show करेंगे? You can use you can test it with sodium hydroxide or you can test it with aqueous ammonia. So use sodium hydroxide, add few drops, and then add an excess. With few drops, if it contains Fe2 ions, green PPT would form, green precipitate form, which remains insoluble in excess. ऐसे लिखा आपने, which remains insoluble in excess. Excess W is added to acidified KMnO4. Describe the color change seen. देखो W है क्या? क्या मतलब? Solution W is a green color and contain Fe2 ions. Describe how W could be shown to contain. So we need to prove the test now. कि हमने prove करना है कि it contain Fe2 plus ions. Yes, I know it. It is like it is mentioned in the question, but we have to reinforce. We have to mention the reagent. We have to tell that how to confirm, how to carry out the test, whether you use sodium hydroxide or you use aqueous ammonia. So now in part 2, excess W is added to acidified. So W contain iron ions. Imagine W में Fe2 ions है. और इसके अंदर we are adding KMnO4. ये KMnO4 था क्या? ये O levels में जब आप लोग थे ना पेपर 3 पेपर की तैयारी कर रहे थे for IG वाले लोग पेपर 4 और O levels वाले पेपर 2, तो आपने एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम है KMnO4. ये कहाँ पढ़ा था हमने? और इसमें ये क्या चीज है? किस बला का नाम है KMnO4? Why do we use KMnO4 by the way? Important cheese, everyone. What is the role of KMnO4? सर ये वो Why do we use KMnO4? It's an oxidizing agent. It can oxidize. It reduces itself. So can you oxidize Fe2 ions? Can you oxidize F? Yes, we can. We know iron 2 ions can be oxidized to iron 3 ions. देखो जा सकते हैं ना Fe. जब maximum possibility उसमें होती है तो, but iron 3 ions cannot be oxidized. अगर इसमें iron 3 होता और आप KMnO4 ऐड करते तो पर्पल कलर चेंज नहीं होता. Purple remains purple. But in this solution we had Fe2 ions. तो कलर चेंज क्या होगा? From purples, excess of W is added to acidified. Yes, so from purple. अब देखो जहां पे स्कैम हो सकता है हमारे साथ, कहां पे? पर्पल टू क्या होना चाहिए? कलरलेस होना चाहिए ना. पर्पल टू, बिकॉज KMnO4 का कलर हमने पढ़ा हुआ है. पर्पल टू कलरलेस पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन वो गोरा इतना अच्छा तो नहीं है ना कि आपको आराम से पर्पल टू कलरलेस वाला क्वेश्चन दे दे. इसमें कलरलेस नहीं होगा. कोई बताए मुझे क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा कलरलेस? द सॉल्यूशन वॉन्ट बी कलरलेस एट द एंड. क्यों नहीं होगा? गोरा इज अ बिग स्कैमर, यू नो भाई. उसने बताया हुआ है, गौर से देखो. यू आर एडिंग एक्सेस ऑफ FeW. यू आर एडिंग एक्सेस ऑफ W, एक्सेस. तो KMnO4 would
यूज्ड अप, KMnO4 तो खत्म हो जाएगा, तो ये W एक्सेस में रहेगा। तो पर्पल कलर जो था वो तो कलरलेस हो गया, लेकिन सिंस W इज इन एक्सेस एंड W कंटेन Fe2 आयंस, तो पर्पल से ये क्या हो जाएगा, ग्रीन। होगा या नहीं होगा? हुआ ना स्कैम, यहाँ पे हो सकता था, बिग चांस ऑफ स्कैम। तो मेक श्योर कि स्टेटमेंट गौर से पढ़ो। डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया एंड देन एक्सेस, तो हमने ऐड कर लिया हुआ है। फ्यू ड्रॉप्स में इट फॉर्म ग्रीन पीपीटी, और आपको पता है इनसॉल्युबल रहेंगे। वेरी टायर्ड राइट नाउ। सॉलिड एक्स, तो मैंने बताया इजी पेपर है, लेकिन आपने आंखें और दिमाग खुला रखना है अपने, while attempting, while reading every single state। आईजी लोगों के पास टाइम थोड़ा कम है, मेक श्योर 35 मिनट में 30 मिनट में पेपर कंप्लीट हो जाएगा। 10 मिनट्स में प्लीज प्रूफ रीड करो इसको, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सो फॉर द ओ लेवल्स पीपल। सो सॉलिड एक्स इज अ शाइनी ग्रे मेटल, तो ये मेटल है। ओके, टेस्ट फॉर द सॉलिड एक्स आर शोन इन 3.1। Some of the observation of these tests are also shown. So add excess of acid to X in a test tube, gas is produced. So यार आपके पास वो X था, solid metal था, उसमें हमने ऐड किया nitric acid, we added HNO3, and the moment we added HNO3, the gas produces, वहां से कुछ gas produce हुई, bubbles of gas। अच्छा, सबसे पहले add excess, तो solid जो था वो dissolve हो गया, metal dissolved, disappear, remain colorless, it become more warmer। इस तरह से redox reaction हुआ है, that metal actually more reactive than hydrogen। क्योंकि अगर ये कॉपर होता तो कॉपर तो एसिड से रिएक्ट नहीं करता ना, because copper is below hydrogen। So only that metal can react with acid that is more reactive, क्योंकि ये metal compound नहीं है, it is just a metal। Make sense everyone? Okay, so the gas produced is tested, ठीक है। फिर उसमें add nitric acid and sodium aqueous silver nitrate, some of the solution from test 1। टेस्ट 1 में क्योंकि हमने उसमें निट्रिक एसिड ऐड किया हुआ है, अब उसमें जब भी आपने निट्रिक एसिड ऐड किया तो सॉलिड डिसअपीयर हो गया, कलरलेस सॉल्यूशन बिकम मोर वार्म। तो नाउ जब भी आप किसी मेटल का, इमेजिन मेरे पास ये कैल्शियम था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो सिंपल मेटल ले लेते हैं, सोडियम था फॉर एग्जाम्पल। सोडियम हमने ऐड कर दिया निट्रिक एसिड, ऑल्दो सोडियम इज नॉट अ शाइनी मेटल, डल मेटल होती है ग्रुप 1 में। सो क्या बनेगा आपको, सोडियम विल डिस्प्लेस, तो हाइड्रोजन निकल जाएगी, और आपके पास सोल्यूशन में बचेगा क्या, यू विल गेट एन एक्वस सॉल्ट। यू हैड नाइट्रेट आयंस, और जो भी मेटल होगी, इमेजिन वो मेटल हमें नहीं पता, हम उसको एक्सी यूज कर। नाउ द सोल्यूशन कंटेन दिस, द सॉल्ट दैट कंटेन नाइट्रेट आयंस एंड द आयंस ऑफ द मेटल, द आयंस ऑफ द मेटल, वो आयन बन चुका है। अब उसमें हमने ऐड किया निट्रिक एसिड, देन हमने ऐड किया सिल्वर नाइट्रेट, इसी सोल्यूशन में, दैट सोल्यूशन कंटेन नाइट्रेट एंड आयंस ऑफ दिस, द सोल्यूशन रिमेन्स कलरलेस। इसका मतलब क्लोराइड नॉट प्रेजेंट। अगर सिल्वर नाइट्रेट से, आई मीन हेलाइड आर नॉट प्रेजेंट ना, क्लोराइड क्यों कहें, हेलाइड, कोई भी हेलाइड नहीं, अगर सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने से कोई प्रेसिपिटेट आते तो वी कुड से दैट व्हाइट है तो क्लोराइड है, ब्लू है तो मीन क्रीम है तो ब्रोमाइड है, और येलो है तो आयोडाइड है। सो सिंस नन ऑफ द प्रेसिपिटेट forms, it remains colorless, so chloride ions are not present. Then we added nitric acid, barium nitrate, and you again get white। तो barium nitrate से जब भी white PPT आए तो the solution contain sulfate ions, right? Sulfate ions solution के अंदर है। जो sulfate ions अगर solution के अंदर है, तो इसका मतलब यह है कि स्टेप 1 में हमने जो एसिड ऐड किया था वो सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है। टेस्ट 1 नहीं समझ आया, दोबारा रिपीट कर देते हैं, मुझे बस क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। प्रेडिक्ट द आइडेंटिटी ऑफ द गैस प्रोड्यूस व्हेनेवर एनी मेटल रिएक्ट विद एसिड। टेस्ट 1 में देखो कर क्या रहे हैं, प्लीज लुक एट टेस्ट 1 एवरीवन। एक्सेस ऑफ डाइल्यूट एसिड इज एडेड टू मेटल एक्स। सो आपके पास एक बीकर है जिसमें मेटल है, शाइनी मेटल, एंड यू आर जस्ट एडिंग एक्सेस ऑफ एसिड इनटू इट। कर दिया है। Whenever any acid reacts with a metal, the only gas produced is hydrogen gas. कौन सी गैस थी? So gas produced in test 1, तो gas is hydrogen gas. Make sense? कोई समझ आ रही है बात? क्या टेस्ट है इसका? Bring the lighted splint
bring the lighted splint. That is the test near the gas. And what is the observation? ये तो test है ना, lighted splint ले आओ. तो pops up. It pops up. तो अगर वो pop sound देता है, देखो, 1 mark is for the correct gas, 1 mark is for the correct test, and 1 mark is for the positive test के pop sound देगा. The observation of test 1 are incomplete. State one other observation the student must make for test. दोबारा से देखिए. It says excess of dilute acid is added to X. Gas produced is tested. Solid dissipates. Solution remain colorless. The solution remains colorless and it becomes more warm. So what could be the third possible or fourth possible observation that you can add on test 1? So add excess dilute acid. Observation incomplete. Solid dissolve. मुझे लगता है dissolve वाली बात हो सकती है. Disappear. Solution remains colorless. और bubbles of gas नहीं लिखे ना हमने. Bubbles. Yes. क्योंकि gas निकल रही है. Bubbles of gas, effervescence. So yes, we can say that क्योंकि gas निकल रही है. State one observation. So bubbles of gas, or you can say effervescence, or you can say तीसरा क्या लिखते हैं हम लोग, एक और भी चीज होती है. State the conclusion you make from the test 2. What is test 2? Test 2 में हमने क्या conclusion निकाला था? Halide ions are not present because solution remains colorless even after addition of silver nitrate. So halide ions are not present. So आप लिख सकते हो no chloride, bromide and pyrite. Okay, state conclusion you make from test 3. देखो ये थोड़ा सा challenging question है. ये वाला very question, this is थोड़ा सा time consuming. State the conclusion you made from test 3. तो क्या conclusion निकाला हमने? The solution contain sulfate ions. The solution have SO4. Identify the acid. तो बताएं ना हमने कौन सा एसिड यूज किया था. ये मैं आपके सामने सारा क्वेश्चन. गिविंग यू 5 सेकंड अगेन. Which acid had we used in the first step? कौन सा एसिड यूज किया है? जल्दी बताएं सारे. 10 रुपए दूंगा. Anyone in the class? Mic is open. How do we know which acid it has used based on the observation that we made on the right side? Look at the last observation. Shabash Fatih. So look at the last observation. It contained sulfate ion. ये कहाँ से आया sulfate ion? वो तो metal के अंदर कौन सा sulfate ion होगा? तो ये जो sulfate आया कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? ये वो जो acid हमने ऐड किया था ना, ये वाला acid, ये वहाँ से आया. Because वो initially तो वो metal थी. तो कौन सा acid है जिसमें sulfate ion होता है? Sulfuric acid. So H2SO4. Identify the metal X. तो metal X कोई भी metal हो सकती है that is above hydrogen. So you can name any metal. Make sense? Which is reactive metal, right? Okay. Next question. ये question करेंगे last and then आपके पास 2 question और बचेंगे, वो आप complete करोगे. You will get another ATP worksheet. हर question की हमने 2 worksheets. And I'm very sure जिसको कुछ भी नहीं आता ATP का, वो ये सिर्फ 5-6 दिन थोड़ा सा classes attend कर ले और ये वर्कशीट सॉल्व कर ले, प्रिंटेड वर्कशीट सॉल्व कर ले. आई कैन गारंटी इंशाल्लाह आपके 35+ आए. लेकिन उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट तो करनी पड़ेगी. ऐसे तो नहीं हो सकता. अ स्टूडेंट टेस्ट 2 solutions, solution C and solution D. Solution C is aqueous calcium nitrate. उसने बता दिया कि solution C is nothing but calcium ions है उसमें और nitrate ions. Aqueous है तो ions ही होंगे. So it contains nitrate ion and it contains calcium. Complete the expected observation. The student divide the solution C into 3 portions. उसने 3 different test tubes में इस solution को divide कर लिया. This was your solution C. It was divided into 3 different. This is A, B, and C. Okay.
A student carry out the flame test to the first portion. Since it contain calcium ions, क्या कलर होता है कैल्शियम आयंस? क्योंकि फ्लेम टेस्ट किसका होता है? फ्लेम टेस्ट किसी नॉन मेटल का नहीं है भाई, नाइट्रेट लिखा ना। फ्लेम टेस्ट हमेशा किसका होता है? फ्लेम टेस्ट तो किसी मेटल का ही हो सकता है। तो मुझे जल्दी से बताएं ना जरा, कैल्शियम का क्या कलर? जल्दी से सारे फ्लेम कलर्स बताएं, फ्लेम कलर्स बताएं जरा, क्या कलर होगा इसका कैल्शियम का? सर ऑरेंज रेड। ऑरेंज रेड। दो लोगों का ब्लू होता है, किस किस का ब्लू होता है जरा बताएं? लाइट ब्लू, कॉपर का ब्लू होता है, और कैल्शियम इज ऑरेंज रेड। शाबाश। अगर ये कॉपर होता तो फिर उसका फ्लेम कलर क्या होता? और अगर ये कॉपर, कैल्शियम और बेरियम होता उसका फ्लेम कलर क्या होता? कॉपर का है लाइट ग्रीन, एंड सॉरी लाइट ग्रीन, ब्लू ग्रीन, और उसका लाइट ग्रीन। ऐसे ही, और इसका ब्लू ग्रीन। सो सिंस इट इज कैल्शियम इट इज ऑरेंज। लेकिन ये आपको गिवन होगा, लेकिन एमसीक्यू में गिवन नहीं होगा। एक एमसीक्यू आना है। टू द सेकंड पोर्शन नाउ, पहले तो हमने इसका फ्लेम टेस्ट किया, हमने क्लीन नाइक्रोम वायर ली, उसको हॉट बंसन फ्लेम में रख दिया। नाउ टू द सेकंड पोर्शन व्हिच इज, क्योंकि हमने 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ। स्टूडेंट ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप पॉइंट अंटिल एन एक्सेस, क्योंकि उसमें क्या है? इट कंटेन कैल्शियम आयंस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या देगा वो? व्हाइट पीपीटी, फ्यू ड्रॉप्स। एक्सेस में पीपीटी इनसॉल्युबल बताया था अभी। व्हाइट पीपीटी if it is contain calcium, PPT insoluble. 2 marks, easy 2 marks. To the product of B. Now, what is the product of B by the way? Hold on. This contain calcium and nitrate. We added sodium hydroxide. And when you add sodium hydroxide, you will get PPT of calcium hydroxide. PPT किस चीज के आएंगे? प्रेसिपिटेट जब भी आते हैं ना, वो उसी मेटल का हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, उसी मेटल का हाइड्रोक्साइड। तो प्रेसिपिटेट आए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाउ द सॉल्यूशन कंटेन, अब सॉल्यूशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है, और क्योंकि उसी सॉल्यूशन में सोडियम भी है, उसी में नाइट्रेट भी है। अब उसमें 4 डिफरेंट आयंस। अब ये प्रोडक्ट की बात करें, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ बी, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ बी। अ स्टूडेंट adds a piece of aluminum foil, warms the mixture, any gas produces can. तो मुझे बताओ, इसमें नाइट्रेट आयंस है, उसमें हमने पहले से सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला हुआ है, और अब हम उसमें एल्यूमिनियम फॉइल भी डाल रहे हैं। अब उसको वार्म भी कर रहे हैं, तो इट कंटेन नाइट्रेट आयन। तो यहाँ से क्या होगा? व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस? यू विल एक्सपेक्ट सम अमोनिया गैस व्हिच यू विल टेस्ट विद डैम्प रेड लिटमस पेपर, and it should turn blue. अगर वो ब्लू होती है तो वो अमोनिया गैस है, अगर वो अमोनिया गैस है तो वो क्या है? It contain nitrate. So observation क्या है? The damp red litmus paper turns blue. That is what you can observe. The third portion of C. Now again, let's back to the third portion, which still contain calcium and nitrate ions, because we've separated initially. This will be calcium and nitrate ion. ये third portion है. 1 cm cube of nitric acid followed by silver nitrate. तो कोई change आएगा? इसमें change आएगा? I don't think कोई change आएगा. No change. क्यों कोई change नहीं आएगा? क्योंकि भाई सिल्वर नाइट्रेट तो हेलाइड आयन का टेस्ट है, इसमें तो कोई हेलाइड है ही नहीं. It contain chlor nitrate ion. No change. Easy. Okay. Solution on test on solution D. इसको 4 portions में divide कर लिए. Test 1. Use a glass rod. Imagine you have a test tube and you are given with an unknown solution called D, and you are using a glass rod to transfer 1 drop of the first portion of D onto the piece of universal indicator paper. तो glass rod dip किया, यूनिवर्सल इंडिकेटर आपके पास पेपर है जिसके ऊपर आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर अप्लाई किया हुआ है, डैम्प यूनिवर्सल इंडिकेटर है, और आपने वो जो ग्लास रॉड था उसके ऊपर वो अटैच हो जाएगा ना, वो जो भी उसके अंदर मेटल होगा, ग्लास रॉड को आपने इसके ऊपर वो ड्रॉप लेके इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर रखा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर अगर वो एसिड होगा या अल्कलाई होगा, इट विल चेंज द कलर।
यूनिवर्सल इंडिकेटर टर्न्स रेड, इसका मतलब सॉल्यूशन में क्या है? द सॉल्यूशन कंटेन हाइड्रोजन आयंस. Because it turns red, the solution contain what? It contain H plus. So the solution is acidic. To the second portion of D, add solid sodium carbonate. क्योंकि हमने इसको 4 portions में divide किया हुआ है, तो second वाले में you are adding a very reactive metal carbonate. Solid disappear effervescence lime water milky. तो देखो, we know that metal carbonate acid, if it contain acid only, then sodium carbonate would react, because metal carbonate only react with acid to produce carbon dioxide. अब तो ये बात पहले भी कंफर्म होगी थी, अब तो कंफर्म होगी कि वो जो सोल्यूशन है वो एसिड ही है. टेस्ट एनी गैस प्रोड्यूस्ड ऑन लाइम वाटर मिल्की. कार्बोनेट तो हम बाहर से ऐड कर रहे हैं, तो इसमें कोई हम कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट नहीं है, जस्ट टेस्ट ऑफ एसिड. टू द थर्ड पोर्शन, 1 cm cube of nitric acid, few drops of silver nitrate, no change. So no chloride, bromide और आयोडाइड, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं आया. क्यों चेंज नहीं आया? क्योंकि हमने नेट सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने से भी कोई चेंज नहीं आया. तो इसका मतलब अंडरस्टूड है इट डजंट कंटेन एनी हैलाइड आयन. फिर बेरियम नाइट्रेट वाली स्टोरी सुनाएगा, तो क्या है? इट कंटेन्स सल्फेट. तो ऊपर क्या था? इट कंटेन हाइड्रोजन आयन और नीचे सल्फेट आयन. तो फिर है क्या ये? क्या है ये? व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? कम ऑन, क्या है इसमें? इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है. सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. Strong acid की pH could be anything above 11. Identify the gas produced when sodium carbonate, carbon dioxide. Identify the 2 ions, hydrogen ions and sulfate. So मैं आपको बता रहा हूँ, oh sorry, 1 होगी. ठीक है, 1 या 2 लिख दो, 1 लिख दो, anything. वो strong alkali की हो. So make sense everyone. So we did 4 questions and these are actually very easy question but not that easy. अगर आप इसको थोड़ा सा पूरे question की detail पढ़नी है आपने, and only then you can score full marks. हर important information को underline करो, important observation को underline करो and make sure you use the qualitative analysis sheet. थोड़ा उसको पहले से याद करना है जिस तरह आज हमने revise किए initially. और please complete this worksheet before the class. आपको अभी रात को तो नहीं, अभी इंशाल्लाह कल मॉर्निंग में एक और इसी की वर्कशीट मिलेगी क्वेश्चन 4 3 की. तो क्वेश्चन 3 आर डन. जो लोग ये 10 क्वेश्चंस कर लेंगे, 7 ये और 4 क्वेश्चन में और भेजूंगा, आपका क्वेश्चन 3 में इंशाल्लाह मैक्सिमम फुल मार्क्स आएंगे अगर आपको ये दोनों वर्कशीट्स आती हैं. टुमारो इंशाल्लाह विल डू क्वेश्चन 4 एंड ऑफ कोर्स उसी की एक वर्कशीट हम क्लास में करेंगे और एक आप एज अ होमवर्क करेंगे. इफ यू एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. सी यू टुमारो इंशाल्लाह सेम टाइम. सर यस नानियाल, आप क्वेश्चन नंबर 4 बाद में करा सकते हैं? वो कल परसों सीएस का एग्जाम है. मैं रिकॉर्ड कर दूंगा. यू कैन हैव रिकॉर्डेड लेसन. चलें, सही है. ठीक है. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.